So the very first Europeans who started to get to know the maritime routes was Portuguese. 1487 कौन है? Bartholomew Diaz. What did he find out? He discovered the Cape of Storms. Later it is known as Cape of Good Hope. 1492 Christopher Columbus. He went across the Atlantic Sea. और क्या what did he find out? West Indies, and the people were called as Red Indians. ठीक है. 1498 Vasco da Gama. Vasco da Gama came to India on which year? Calicut, 17th May 1498. 1501 में कौन है? Amerigo Vespucci. He discovered South America, hence the America is named after him. 1519 में कौन है? Ferdinand Magellan. He exposed the Magellan died in a clash, and for the first time he and his team exposed the entire globe. Next we have seen the results. Results क्या है? 16th century was dominated by Spain and Portugal. Then later it was Dutch, French and British merchants. So we have seen the Portuguese. Portuguese का company का नाम क्या था? What is the company name of Portuguese? Hello. Portuguese की company का नाम क्या था? Estado da India. Estado da India. So they followed this thing. Portuguese 1498. The Vasco da Gama discovered Portugal. Vasco da Gama of Portugal discovered India. He came to India on May 17, 1498. Received by Hindu ruler of Calicut. वो टाइम पे क्या नाम था उसका? Zamorin. ठीक है. So what was the first established trading stations at? Calicut, Kannanur and Cochin. ठीक है. So उन लोगों के आउटपोस्टों का नाम क्या था पोर्चुगीज के? What is the outpost name? माने उन लोगों कंपनियों का नाम, उन लोगों के स्टेशंस का नाम क्या था? How will you pronounce this? Pretorias. सबसे पहले हेडक्वार्टर किधर था? कोचिन. कोचिन से किधर चेंज होगा? गोवा. ठीक है. नेक्स्ट क्लियर है? देन असल में हु केम इन फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर कौन है? कोई द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर? ये क्वेश्चन आता, डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है बट द नेम्स आर इंपॉर्टेंट. फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर इज फ्रांसिस्को द अल्मेडा. First Portuguese governor 1505. Then 1506 he established his maritime. कंपनी का नाम क्या पड़ गया? Estado da India. ठीक है. क्लियर है? नेक्स्ट he set aside the Portuguese policy and pursued the policy of Portuguese supremacy in seas. माने सिर्फ और सिर्फ कौन रहना समंदर में? कौन राज करना समंदर पे? सिर्फ और सिर्फ पोर्चुगीज. उसको नाम क्या दिया उन लोगों का? व्हाट द पॉलिसी नेम ऑफ पोर्चुगीज? ब्लू वाटर पॉलिसी. ब्लू वाटर पॉलिसी. उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द ब्लू वाटर पॉलिसी ही रिजॉर्टेड टू प्लंडरिंग. इन लोगों को हराने के वास्ते टर्की, इजिप्ट, बीजापुर और गुजरात एक साथ आए और ही वाज किल्ड इन दैट बैटल. वो जो एक साथ है उसको बोलते कॉन्फेडरेशन. ठीक है. ही लॉस्ट हिज लाइफ इन द बैटल ऑफ चॉल एंड बैटल ऑफ अल्मीडा 1508 and 1509 respectively. Afterwards, in 1509, who succeeded this Francisco Almeida? Alfonso de Albuquerque. He is successor of Almeida. He is the real founder. He captured Goa, Malacca, and Ormuz. 1510, 1511, and 1515. He maintained friendly relations with Sri Krishna Devaraya. Then he said other important governor is Nino da Conha. Then he acquired Diu and Basen. Then the Portuguese headquarters Cochin to Goa. ठीक है. गोवा का पुराना नाम क्या था? पंजिम. ठीक है. पंजिम. आज पानाजी भी बोलते, पहले इसको पंजिम बोलते थे, उसको पानाजी बना, फिर उसके बाद में गोवा का डायरेक्ट पूरा नाम आ गया. So उसके बाद में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा, he brought the Jesuit, माने the Christian
Christian followers. Christian Francisco Xavier came to India with him. Then he established क्या कहाँ उससे पोस्ट थे? Calicut, Cochin, Kannanur, Hooghly, Chittagong, Surat, Gujarat, Santhom, Diu, Daman, Mangalore, etc. ठीक है. 1453 he shifted quarters to Panjim. माने गोवा में ही है ये पंजिम. ठीक है. रीजन फॉर सक्सेस क्या था? इन लोगों को कुछ कंपटीशन नहीं था. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने क्या क्या लाया इंडिया को? जर्दा, टोबैको, पापाया, द फ्रूट पपई, पोटैटो माने आलू, चिल्ली, पाइनएप्पल. ये लोग ये पोर्चुगीज से आए. और क्या? प्रिंट. दे इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस. हु इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस? हु इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस? बोले क्या देते आप जवाब? पोर्चुगीज. पोर्चुगीज. पोर्चुगीज में कौन इंट्रोड्यूस करा? जॉन गुटेनबर्ग. जॉन गुटेनबर्ग. जॉन गुटेनबर्ग. ठीक है. BERG बोला, BURG. ठीक है. So who introduced printing press? Portuguese introduced printing press. And who is the person who invented printing press? John Gutenberg. समझा गया? So yesterday we have done till here. They introduced Western music also. कुछ होमवर्क दिया था कल आप लोगों में? What is the homework which I gave you? What is the homework? याद है नहीं है? Please read. The Dutch East India Company. The Dutch or people of Netherlands. First Dutch expedition under Cornelis the Hotman crossed, reached Sumatra and Bantam in 1596. Dutch East India Company, a government enterprise, was formed in 1602 with corporate name Verenigde Oost-Indische Company. Its chief administrative center was Batavia. Dutch company was governed through 17 directors, commonly known as gentlemen. 18. VOC was first multinational company which issued stocks. It established first factory at Masulipatam. Main interest of Dutch was in the Indonesian archipelago and Spice Island, but later they broke the Portuguese monopoly in India. के बाद कंटिन्यू करो. In 1623, the Dutch company expelled the English from Spice Island by massacring the English at Ambayona. By first half of 17th century, they grabbed 50% of spice trade and started exporting textiles, indigo, and saltpeter to SE nations and Southeast nations, SE nations, and Europe. In India, it established its stations at Surat, Agra, Chinsura, Nagapatnam, Pulicat, Bhimanipatnam, Broch, Ahmedabad, Cochin, etc. Earlier headquarters was Pulicat, later shifted to Nagapatnam in 1689. They got right to mint coins at Pulicat in 1657 from Sultan of Golconda. उसके बाद Dutch commercial activities began to decline by the beginning of 18th century, and with the Battle of Bedera, with the English company, Governor Robert Clive in 1759 came to an end. By 1795, the English succeeded in expelling the Dutch completely. Reasons for failure.
corruption in officials, government company entangled in rules and regulations, concentration on SC trade, Battle of Bidera 1759. So Dutch में अगर आप पढ़े, when you listen, when you see the Dutch कहाँ के लोग हैं? Dutch people are from where? Netherlands. Dutch people are from Netherlands. Portuguese are from Portugal. So Dutch people are from Netherlands. ये याद रखिए. The Dutch expedition under के क्या नाम है इसका? Cornelius Houtman crossed the Cape of Good Hope to reach the Sumatra and Bantam in 1596. That is Indonesian island. Just Dutch East India Company गवर्नमेंट कंपनी थी, याद रखिए. ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट क्या, इट इज अ प्राइवेट कंपनी. डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? गवर्नमेंट कंपनी थी. वाज फॉर्म कंपनी है 1602 with corporate name वेरिंगडे ऊस्ट इंडेशे कंपनी. ठीक है, कंपेन बोलते हैं इसको. इसका नाम क्या था? पोर्चुगीज कंपनी का नाम क्या था? व्हाट द कंपनी नेम ऑफ पोर्चुगल कंपनी का नाम क्या था? एस्टाडो दा इंडिया. ठीक है, पोर्चुगीज का एक कॉलम बना लीजिए आप लोग, कंपनी नेम्स बोल के. प्लीज मेक ए कॉलम. कैसा कॉलम बनाते हैं आप? मेक ए कॉलम देयर. क्या बोलते हैं? यू कैन जस्ट मेक अ कॉलम लाइक दिस. कंट्री कंपनी नेम. ये क्या बना इधर? सबसे पहले क्या लिखो इधर? कंपनी नेम. ठीक है, इट इज कंपनी नेम. इधर क्या है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? पोर्चुगीज, उसके बाद में डच, फिर इंग्लिश, और यू कैन जस्ट राइट डाउन एज फ्रेंच लिखो, फिर इंग्लिश लिखो. ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट है. कुछ भी आप माइदा फॉलोइंग में आ सकता है आपको. You can just get in any way. You can make this column like this. Okay, company name. What is the company name of company name? उसके बाद में कंपनी नेम क्या लिखते हैं? उसके बाद में ईयर बोले लिखो. ईयर. सो कंपनी नेम क्या है? व्हाट इज द कंपनी नेम ऑफ पोर्चुगल? एस्टाडो. व्हाट इज द कंपनी नेम ऑफ पोर्चुगल? एस्टाडो द इंडिया. ठीक है, इन लोगों का कंपनी नेम क्या है? तो नाम लिख लीजिए इधर. फ्रेंच की कंपनी नेम का अलग नाम लिख लेना, और इसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये. 11 जब अपन खत्म कर लेते हैं, वी कैन जस्ट फिल अप दिस टेबल. ठीक है, समझ में आ रहा? ओके, सो कमिंग बैक. सो ये कंपनी नाम क्या है? डच. कौन से लोग थे? डच किधर से आए थे? नेदरलैंड से. और कौन है सबसे पहले? एक्सपेडिशन कौन स्टार्ट करा डच से? कॉर्नेलियस हॉन्टमैन. अगर आप देखें इधर, अगर पोर्चुगीज से अगर आप इधर ईयर नहीं लिख रहे, तो ये लिखिए. यू कैन जस्ट राइट डाउन एज व्हाट यू कैन से वोएजर. आए कौन पहले? सबसे पहले पोर्चुगल से कौन से पहले सबसे पहले कौन है? इंडिया को सबसे पहले कौन है? वास्को डी गामा. वास्को डी गामा. कौन सी तारीख को आया वास्को डी गामा? 15 नॉट
मालूम है तो बोलिए, नहीं तो गलत मत बोलिए, वही दिमाग में रह जाता। नहीं मालूम है तो वही नहीं मालूम है बोलिए, या याद नहीं है बोलिए, गलत मत बोलिए, वही दिमाग में रह जाता सबसे। When did the Vasco da Gama came to India? कितने बार पढ़े अभी तक? 1498, May 17, 1498, याद रखिए। So you have this. So what is the company name of Dutch? डच की कंपनी का नाम क्या था? वेरिंगडे ऊस्ट इंडिश कंपनी। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वाज बाटाविया। इधर है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इसका बाटाविया में। उसके बाद पढ़िए, ये प्राइवेट कंपनी थी गवर्नमेंट कंपनी थी डच की? इट वाज प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी। इट वाज द गवर्नमेंट कंपनी। कितने डायरेक्टर्स थे? 17। प्लीज रिमेंबर, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने डायरेक्टर्स थे? 24। लिख लीजिए उधर साइड में। इन ईस्ट इंडिया कंपनी देयर वर 24 डायरेक्टर्स। डच में कितने थे? 17। ये मैं आपको एमसीक्यूज में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने डायरेक्टर्स थे? 24। डच ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने डायरेक्टर्स थे? 17। और लोग डायरेक्टर्स को क्या बोलते थे? जेंटलमैन 17, ठीक है। उसके बाद वीरेंद्र ईट कंपेन को स्मॉल नेम क्या है? VOC फॉर द फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी विच इशूड स्टॉक्स। माने सबसे दुनिया में सबसे पहली मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी है? VOC। क्या नाम है? वेरिंगडे ऊस्ट इंडिश कंपनी, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो फर्स्ट फैक्ट्री किधर बनाई लोगा? द फर्स्ट फैक्ट्री मछलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। Main interest of Dutch was in the Indonesian archipelago and Spice Island. But एक मिनट रुको, just wait. So what is the company name of Dutch? डच की कंपनी का नाम क्या था? हेलो, आर यू देयर? yes sir. डच की कंपनी का नाम क्या था? स्मॉल नाम याद रख लो, VOC, ठीक है। डच की कंपनी का नाम क्या लिखे उधर आप? पोर्चुगीज का नाम Estado da India. Estado da India। डच की कंपनी का नाम VOC, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद में क्या है? इट एस्टैब्लिश एट फर्स्ट मछलीपट्टनम, कौन से उस पे एस्टैब्लिश हुआ? दिस इज एस्टैब्लिश एट वेयर? मछलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम। भाई देयर इज अ बैकग्राउंड नॉइस प्लीज। सो मसूलीपट्टनम। पोर्चुगीज का किधर थे? वेर इज द पोर्चुगीज? पोर्चुगीज का आउटपोस्ट किधर था? भाई आई एम आस्किंग समथिंग। आउटपोस्ट किधर थे मछलीपट्टनम इसके पोर्चुगीज के? कोचिन, फिर उसके बाद में गोवा, पूरा हुगली और पूरे आए थे उधर। इसका मछली इधर डच का आउटपोस्ट किधर है? सबसे पहले कहाँ है लोग? मसूलीपट्टनम। माने आज क्या नाम है इसका? मछलीपट्टनम का मछलीपट्टनम बोलते हैं आंध्र प्रदेश में। yes sir. पोर्ट वो टाइम में क्या बोलते थे? मसूलीपट्टनम। आज क्या बोल रहे हैं उसको? मछलीपट्टनम, ठीक है ना। कितने डायरेक्टर्स थे डच में? हाउ मेनी डायरेक्टर्स वर देयर? 17 डायरेक्टर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने थे? इन ईस्ट इंडिया कंपनी हाउ मेनी डायरेक्टर्स वर देयर? 24। डच की कंपनी का नाम क्या था? VOC, ठीक है। उसके बाद पढ़िए, मेन इंटरेस्ट डच वाज इन द इंडोनेशियन आर्किपेलागो एंड स्पाइस आइलैंड।
but later they broke into the India also. So main interest क्या था इन लोगों का? इंडोनेशियन आर्किपेलागो इंडोनेशियन Spice आर्किपेलागो में, और पोर्चुगीज, और बाद में क्या आर्किपेलागो एंड स्पाइस आइलैंड, एंड लेटर दे केम टू पोर्चुगीज. ठीक है, नेक्स्ट देन प्लीज रीड. In 1623, the Dutch company expelled the English from Spice Island by massacring the English at Ambayona. अम्बायोना माने इन लोगों क्या करे, इंग्लिश लोगों को मार मार के भगा दिए. ठीक है, क्लियर है? Yes, कहां yes. से भगाए? Spice स्पाइस Island. आइलैंड से 1623 में. ठीक है, नेक्स्ट. तो उसके बाद पढ़िए. By first half of 17th century, they grabbed 50% of spice trade and started exporting textiles, indigo, and saltpeter to the sea nations and Europe. तो 17th सेंचुरी माने कौन से डेट से कौन से तारीख तक रहता? 1600 to 1699. 1600 to 1699. They grabbed 50% of spice trade and started exporting the textiles. Exporting the textiles माने बाहर भेजना स्टार्ट करे. And indigo and salt pepper. Salt pepper किसको बोलते हैं? काला नमक है, उसको बोलते हैं salt pepper. To southeast nations and Europe. Europe. नेक्स्ट क्या है? In India, it established its stations at Surat, Agra, Chinsura, Nagapatnam, Pulikot, Bhimanipatnam, Broach, Ahmedabad, Cochin, etc. So किधर किधर थे इन लोगों के स्टेशन? सूरत किधर है? गुजरात. आगरा, दिल्ली. आगरा किधर है? वेर इज आगरा? कौन स्टेट में आगरा? आई एम आस्किंग समथिंग. उत्तर प्रदेश में है सर. आगरा इज इन यूपी. यूपी. उसका ने पुलिकट लेक, आंध्र प्रदेश कोने में. उसके ब्रोच. अहमदाबाद किधर है? गुजरात. कोचीन, केरला. ये क्या है पूरे? ये कोस्टल सिटीज है पूरे. ठीक है, कोचीन, देन यू हैव अहमदाबाद एंड गुजरात टाइप. ठीक है, सो यू हैव सूरत, आगरा, चिंसू, नागपट्टनम, पुलिकट, भीमुनिपट्टनम, ब्रोच, अहमदाबाद एंड कोचीन. ठीक है, अर्लियर हेडक्वार्टर वाज पुलिकट. आंध्र प्रदेश में जो है इट इज पुलिकट. ठीक है, हेडक्वार्टर्स किधर बना है सबसे पहले लोग? अंबायोना. फर्स्ट फैक्ट्री किधर बना है? अच्छा, मछलीपट्टनम. उसके बाद में हेडक्वार्टर्स किसको बना है? पुलिकट पे. उसके बाद शिफ्टेड टू नागपट्टनम. फर्स्ट फैक्ट्री डच की किधर आई? ये आपको बीट्स में इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द डच केम इन मछलीपट्टनम. then the headquarters was shifted to पुलिकट. उससे पहले कौन सा हेडक्वार्टर्स था? नागपट्टनम. कौन से साल में? 1689. ठीक है, अर्लियर हेडक्वार्टर्स वाज पुलिकट से किधर शिफ्ट हो गए? नागपट्टनम. उसके बाद में they got right to mint the coins. माने कॉइंस छापना. कब मिला राइट? 1657 from Sultans of Golconda. Right to mint the coins was got in 1657 from Sultans of Golconda. ये याद रखिए. उसके बाद में क्या है? Commercial activities. Dutch commercial activities began to decline by the beginning of 18th century and with the Battle of Badjara. Beginning of 18th century. 18th century माने 1700 1799. 1700 to 1799. And with the Battle of Badjara with the East India Company. And who was the governor of East India Company at that point of time? Robert Clive. 759 came to an end. उसके बाद 1795 में English succeeded expelling the Dutch completely. आपको याद होगा
इससे पहले डच वाले क्या कर रहे थे, किधर से भगाए थे इंग्लिश को? डच वाले क्या कर रहे थे, डच किस, नेदरलैंड इंग्लिश को किधर से भगाए थे? अंबयाना से भगाए, कौन सा Spice आइलैंड से Island. भगाए थे? स्पाइस आइलैंड, स्पाइस आइलैंड से। कब भगाए थे? 1623, 1629। उसका बदला कब लिए लोग ब्रिटिशर्स? 1795. ऑलमोस्ट कितने साल के बाद? ये 1623 के बाद, ऑलमोस्ट 150 साल के बाद हाँ 150 साल के। डच वाले स्पाइस आइलैंड से भगाए। अब इंग्लिश किधर से भगाए लोगों को? इंडिया से। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये लोग फेल्यूर कब हुए? व्हाट वाज द फेल्यूर? सबसे पहला रीजन क्या है? करप्शन ऑफ ऑफिशियल्स, करप्शन। उसके बाद में टू मच रूल्स एंड रेगुलेशन। हर एक चीज काम करना है तो रूल्स एंड रेगुलेशन, माने देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों है ज्यादा है? बिकॉज इट वाज ए गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साउथ ईस्ट स्टेट। इंडिया को छोड़ देके साउथ ईस्ट स्टेट को चले गए। अगर आपको याद है, पोर्चुगल से इंडिया का इंटरेस्ट क्यों खत्म हो गया था? दे कॉन्सेंट्रेटेड इन ब्राजील। ठीक है, बैटल ऑफ बिदेरा वाज द लास्ट। ठीक है, उसमें हार गए थे लोग बिदेरा में, इंग्लिश कंपनी से। क्लियर है? सो दिस वाज योर डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच वाले कहां से आए? फ्रॉम वेयर डिड द डच केम? नेदरलैंड्स, डच केम फ्रॉम नेदरलैंड्स। उसके बाद में हु वाज द एक्सपेडिशन? डच का एक्सपेडिशन कौन स्टार्ट करे? कॉर्नेलियस डी हॉन्टमैन। ही फॉलोड द केप ऑफ गुड होप। उसके बाद कंपनी का नाम, व्हेन वाज द कंपनी नेम फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड? 1602, कंपनी का नाम क्या है इसका, डच का? VOC, VOC। कितने डायरेक्टर्स थे इसमें? 17 डायरेक्टर, वो डायरेक्टर्स का नाम क्या है? जेंटलमैन 17. So VOC was the first MNC multinational company to issue stocks. सबसे पहले एस्टैब्लिश किधर करे ये लोग डच वाले? मसूलीपट्टनम, एस्टैब्लिश कर ले मसूलीपट्टनम। उसके बाद में उन लोगों का हेडक्वार्टर्स किधर बना है? पुलिकोट, पुलिकट। बाद में किधर शिफ्ट कर दिए हेडक्वार्टर्स को? नागपट्टनम, नागपट्टनम। और इन लोग अपने सिक्के खुद से जमाने का किधर उन लोगों का राइट कब लिए खुद से मिंट करने के? 1657। किससे लिए? सुल्तान ऑफ हैदराबाद, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। ठीक है, और कौन से बैटल में लोग हार गए? बैटल ऑफ बदेरा। और कौन से साल में लोग पूरों को भगा दिए इंग्लिश वाले? 1795. 1795। क्यों ये लोग फेल हो गए? एक तो रीजन था करप्शन, फिर सबसे ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा हो गए थे, और ये लोग इंडिया को छोड़ देके साउथ ईस्ट स्टेट में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। और लास्ट बैटल इन विच दे वर डिफीटेड वाज बैटल ऑफ बदेरा। ठीक है, 1759। और 1795 आते आते लोग डच वाले पूरे को खत्म ही हो गए। सो दिस वाज नोन एज डच ईस्ट इंडिया कंपनी।